Very good morning students. I welcome all of you to our online classes of Science Standard 3rd. Students, we are learning the lesson water, and in previous period we have seen the various method of purifying the water. So students, we have seen the various method of pumping the water, sedimentation, filtration, chlorination. So these are the various ways by which we can purify the water. Now we have also seen the other activities. With the help of that we can purify the water. For example, boiling and straining, storage. By storing also we can purify the water. Then we can also use the chlorine tablets to purify the water. Now students, we have seen physical properties of water. Water is colorless, water is odorless, water is tasteless, and water also occupies space. We have seen this quality of water, that water occupies space. We have also seen one activity of balloon. When the balloons are in a normal size, they occupy very little space. But the balloons, when they are blown with water, when we fill water into the balloon, they increase in their size. Means the shape of the balloon changes. And what happens? The balloons increase in their size. So by this experiment we can learn that water occupies space. Now students, we have also seen another quality of water, that water takes the container of the shape. Means in which container we are pouring the water, that water takes the shape of that container. Okay, and we have seen this activity with the help of various glasses, shape of various glasses. We have seen one activity that is given on page number 99. There are different types of glasses, and when we pour water into that water takes the shape of that glass. Now students, today we are going to learn hard water and soft water. So first we are going to study soft water. Okay. So students, what is the meaning of soft water? So water which forms lather with soap easily. When we use that water and we dissolve soap into that water, and that soap easily dissolves in that water and forms a lather of soap, it is known as the soft water. Okay, and what is the example of soft water? Rainwater and distilled water. These are the soft waters. Okay, rainwater means we can easily dissolve that soap, and that soap forms a lather easily in rainwater. That is the fresh water, and another one is the distilled water. So these waters are known as the soft water. Now second one is the hard water. Now what is the meaning of hard water? We have seen example of soft water, that is rainwater and distilled water. Distilled water. Okay. So now we are going to see hard water. Hard water is opposite of soft water. The water in which the soap doesn't form any lather. Water which does not form lather with soap is known as the hard water. For example, well water and spring water. Okay. So these are the example of the hard water. In this water, the soap doesn't dissolve in this water, and it doesn't form a lather of soap. So this water is known as the hard water. Okay. Now see another point. What is the example of hard water? That is well water. वेल वाटर, जो पानी हम कुएं से निकालते हैं ना, उसको हम बोलते हैं वेल वाटर और स्प्रिंग वाटर.
spring water. Now students, again I just want to explain you that what is the meaning of soft water. Okay, जिस पानी में सोप जो है वो इजीली डिजोल्व हो जाता है और वो सोप का एक लेयर तैयार होता है, मतलब फोम तैयार होता है, झाग तैयार होता है, तो वो पानी को हम बोल सकते हैं सॉफ्ट वाटर. फॉर एग्जाम्पल बारिश का जो पानी होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट वाटर होता है. डिस्टिल वाटर ये भी क्या है, सॉफ्ट वाटर है. तो इसमें जो सोप है इजीली डिजोल्व हो जाता है और उससे मतलब ज़्यादा जो सोप होता है उसका ज़्यादा झाग तैयार होता है, ज़्यादा सोप का लेयर तैयार होता है, फोम तैयार होता है. और सेकेंड टाइप है हार्ड वाटर. हार्ड वाटर क्या है, तो जिस पानी में सोप इजीली डिजोल्व नहीं होता या तो उसका इट डजंट फॉर्म्स लेदर विद सोप, जिसका लेदर तैयार नहीं होता, झाग तैयार नहीं होता, तो ऐसे पानी को हम बोलते हैं हार्ड वाटर. तुमने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जो कुएं का पानी रहता है तो वो कैसा रहता है, हार्ड वाटर रहता है. स्प्रिंग वाटर जो रहता है वो भी कैसा होता है, हार्ड वाटर रहता है. तो ये जो पानी है इसमें सोप इजीली डिजोल्व नहीं हो सकता है. नाउ से स्टूडेंट्स, वाटर कंटेन्स डिजोल्व गैसेस. नाउ स्टूडेंट्स, पानी जो होता है उसमें अलग अलग तरह की जो गैसेस होती है वो ऑलरेडी डिजोल्व होती है. डिजोल्व मतलब घुली हुई होती है. नाउ सी डिजोल्व गैसेस इन वाटर प्रोवाइड टेस्ट टू वाटर. और ये अलग अलग तरह की जो गैसेस पानी में डिजोल्व होती है, घुली हुई होती है, उसकी वजह से पानी को एक तरह की टेस्ट मिलती है. ओके, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर हेल्प्स द रेस्पिरेशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. इसका एग्जाम्पल क्या है, तो पानी में जो भी मछलियां रहती हैं, पानी में जो रिवर का जो पानी होता है ऑलरेडी उसमें एक गैस डिजोल्व होती है. वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस. तो ऑक्सीजन की जो गैस होती है वो ऑलरेडी ऑक्सीजन जो रहता है वो पानी में डिजोल्व होता है और उसी की वजह से जो मछलियां हैं वो इजीली पानी में जिंदा रह सकती है, बिकॉज दे नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. ओके, सो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ. एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, जो फिशेस रहती है, जो प्लांट्स रहती है, तो उनके लिए ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़रूरी है. तो जो पानी होता है रिवर का, तो उसमें ये जो गैसेस है ये डिजोल्व होती है. हैव यू अंडरस्टूड? नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर हेल्प्स द फोटोसिंथेसिस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन टू यू दैट ऑक्सीजन इज ऑलरेडी डिजोल्व इन वाटर. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर हेल्प्स द फोटोसिंथेसिस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. जो पानी में जो प्लांट्स होते हैं तो उनके लिए ये पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिजोल्व हुआ होता है और उसके वजह से ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल होता है. नाउ the question is here, scale fill, what do you infer about the nature of water? It is hard water or soft water? So what is the answer of that? It is soft water. क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ वाटर. पानी का नेचर कैसे होना चाहिए, मतलब पानी कैसा होना चाहिए, हार्ड वाटर होना चाहिए कि सॉफ्ट वाटर होना चाहिए. तो बच्चों इसका आंसर है सॉफ्ट वाटर. पानी जो है वो हमेशा सॉफ्ट वाटर ही होना चाहिए. नाउ टर्न द पेज. नाउ स्टूडेंट्स, there is worksheet number 1 on given on page number 100. Okay, so students, as we have very less time, I will send you picture of this worksheet number 1 and you have to write down the question and answers of this worksheet number 1 in your textbook. Right now we are just moving forward to the next point, page number 101. Now students, open your textbook, page number 101 and put your finger on the line. सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूशन. सोल्यूबिलिटी मतलब क्या है, तो पानी में कोई भी चीज कितनी जल्दी डिजोल्व होती है या नहीं होती है उसको पानी की सोल्यूबिलिटी बोलते हैं. वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि पानी में बहुत सी जो चीजें हैं वो इजीली डिजोल्व हो जाती है, इसके लिए पानी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट.
So it can dissolve variety of solids, liquid and gases to little or more extent. As I have told you, it can dissolve a variety of solid. मतलब पानी में जो सॉलिड चीजें हैं वो भी इजीली डिजोल्व हो जाती है, लिक्विड और गैसेस की जो फॉर्म की जो चीजें हैं वो भी इजीली डिजोल्व हो जाती है। तो इसी के लिए पानी को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, इट मे बी अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी, मतलब वो सॉलिड या तो फिर वो जो लिक्विड चीज है कितनी मात्रा में पानी में डिजोल्व होती है, घुल जाती है, उसके ऊपर पानी की सॉल्युबिलिटी डिपेंड होती है। ओके, सो जिस तरह से कोई भी चीज पानी में सॉल्युबल होती है, मतलब घुलती है, जल्दी घुलती है या फिर देर से घुलती है, तो इसके अनुसार उसका क्लासिफिकेशन किया गया है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। सोल्यूबल सब्सटेंसेस मतलब क्या, कि जो चीज़ें पानी में जल्दी से डिजोल्व हो जाती है उसको हम बोलते हैं सोल्यूबल, और जो चीज़ें पानी में जल्दी डिजोल्व नहीं होती हैं या तो डिजोल्व ही नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, which are the examples of soluble and insoluble substances? सब्सटेंस यानी अलग अलग तरह की चीजें, पदार्थ। ओके, सोल्यूबल, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल चीजें कौन सी हैं? दैट things dissolve easily in water. And insoluble means things do not dissolve in water. Water. Now students, have you understood the meaning of soluble and insoluble? Soluble means things that easily dissolve in water, and insoluble means things that do not dissolve in water. Okay, so this is the meaning of soluble and insoluble substances. Okay, now students, which are the example of soluble substances? Salt. Salt dissolve easily in water. जब हम पानी में नमक मिलाते हैं तो वो जल्दी घुल जाता है पानी के अंदर। Another example is sugar. Sugar भी जो है वो पानी में जल्दी से dissolve हो जाती है। So these are the two examples, common salt and sugar. These are the examples of soluble. Common salt and sugar. These are the two examples of soluble substances. And insoluble substances, which are the examples? Mud and sand. Mud and sand. These are the two examples of insoluble substances. So, are you getting it, students? Now let's move forward. Now next topic that we are going to study is the solution. What is the meaning of solution? The mixture formed by dissolving a soluble substance in water is known as solution. Now students, see the definition of solution. The mixture formed by dissolving a soluble substance. मतलब जो भी कोई सोल्यूबल चीज है जब वो पानी में घुल जाती है तो वो जो मिक्सचर तैयार होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। नाउ सी, इफ वी dissolve salt in water, it becomes the salty solution. तो वो जो
सॉल्यूशन क्या होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्टी सॉल्यूशन। और अगर जब हम पानी में शुगर को डिसॉल्व करते हैं, शुगर को घोलते हैं, तो फिर वो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी कॉमन टर्म्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। फर्स्ट इज सॉल्वेंट, a liquid which dissolves other substances in it is called solvent। मतलब लिक्विड विच डिजोल्व्स अदर सब्सटेंसेस, ऐसा लिक्विड कि जिसमें बाकी चीजें जो है वो इजीली डिजोल्व हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट डिजोल्व्स इन वाटर एज द वाटर इज अ सॉल्वेंट। मतलब कॉमन सॉल्ट जो है वो इजीली पानी में डिजोल्व हो जाता है, तो इसके लिए पानी जो ये क्या है, सॉल्वेंट है। पानी क्या है, सॉल्वेंट है। Now second one is the solute, a substance which dissolves in a liquid is called solute। जो चीज या जो पदार्थ हम पानी में घोलते हैं उसको हम बोलते हैं solute। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन अबो एग्जाम्पल वी हैव सीन कॉमन सॉल्ट इज अ solute, sugar is a solute। Then third one is the unsaturated solution, a solution which has less amount of solute is known as the unsaturated solution। सॉल्यूशन विच हैज लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है, मतलब जो चीज हम डिसॉल्व कर रहे होते हैं उसकी क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है, तो दैट इज नोन एज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन विच हैज लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट्यूड इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ सी लेमनेड, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड लेमन इन वाटर। गर्मी के दिनों में जब हम नींबू पानी बनाते हैं उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लेमनेड। तो लेमनेड में क्या होता है, तो शुगर होती है, सॉल्ट होता है और लेमन वाटर हम उससे तैयार करते हैं। तो जो लेमन वाटर तैयार होता है वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है शुगर का और सॉल्ट का, शुगर, सॉल्ट एंड लेमन का। हम तीनों का मिक्सचर बना के लेमनेड तैयार करते हैं, हाँ ना। नाउ सी टर्न द पेज नंबर 102, कंडीशंस विच एनहांस द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें हम सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ मिक्सिंग। मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी मिक्सिंग, दोनों के अंदर मिक्सिंग होने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब दोनों भी कैपेबल होने चाहिए मिक्सिंग के लिए। सेकेंड, हाई टेम्परेचर एनहांस द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन। हाई टेम्परेचर एनहांस द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अगर पानी गर्म करके अगर तुम उसमें कोई चीज डिसॉल्व करोगे तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है। हाई टेम्परेचर मीन्स इफ यू बॉइल द वाटर एंड यू डिसॉल्व salt or sugar in it, it dissolves very faster. Then stirring helps in quick formation of the solution. What is the another way? दूसरा एक तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, पानी को घोलते हैं चम्मच से या कप से। जब भी हम लेमनेड तैयार करते हैं तब उसमें शुगर ऐड करते हैं, उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं और फिर स्पून की मदद से हम वो पानी को घोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टरिंग। व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट? स्टरिंग। स्टरिंग मतलब उसको घोलना, वो जो शुगर जो है हम पानी में घोलते हैं, सो वर्ड फॉर दैट इज स्टरिंग। STIRRING। स्टरिंग मतलब घोलना, इसको हम हिंदी में बोलते हैं घोलना। तो ये जो पानी है हम स्पून की मदद से हम उसको घोलते जाते हैं और फिर घोलने की वजह से पानी जो है वो ये शुगर और सॉल्ट जो है पानी में जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। फोर्थ वन इज द सोल्यूट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर। अगर सॉल्ट की या तो फिर शुगर की अगर हम पाउडर बनाते हैं और वो पाउडर बना के अगर हम पानी में डालते हैं तो वो इजीली जल्दी से फास्टर डिसॉल्व हो जाता है पानी में। नाउ सी वन एक्टिविटी इज गिवन हियर to show that stirring helps in quick formation of solution. Take two beakers, beaker 1, 2 and 3, fill them with equal amount of water. तीनों बीकर में क्या करो, तुम सेम अमाउंट का पानी लो। नाउ ऐड 5 ग्राम ऑफ शुगर इन बोथ द बीकर्स।
दोनों जो बीकर है उसमें 5 ग्राम शुगर ऐड करो। स्टर द फर्स्ट बीकर, पहले बीकर को मिक्स करो, शुगर को मिक्स करो, उसमें स्टर करो, घोल लो उसको। यू विल फाइंड दैट द सॉल्यूशन इन बीकर फर्स्ट इज फॉर्म क्विकली विथ while some amount of sugar is seen in the base of sugar beaker second। मतलब जिसको हम घोलते हैं वो इजीली डिजोल्व हो जाता है, लेकिन बीकर 2 को हमने हाथ नहीं लगाया है, उसको घोला नहीं है, तो उसको डिजोल्व होने के लिए टाइम लगता है। ओके, नाउ you will find that the solution in the beaker first is formed quickly while the amount of sugar seen in at the base of the beaker second। मतलब सेकेंड बीकर को हमने हाथ ही नहीं लगाया है, उसको घोला भी नहीं है, तो जो शुगर जो है उसके बॉटम में दिखाई देती है, वैसे के वैसे दिखाई देती है, मतलब उसको घोलने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी? व्हेन वी स्टर द वाटर एंड मिक्स शुगर इन दैट, बाय स्टरिंग इट the sugar dissolves easily in water। Okay, now see, one activity is given here। sea water is a mixture of many things। as you know that सी वाटर जो है, सी वाटर में बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर होता है। टेक दोज थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन सी वाटर। नाउ सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। कॉमन सॉल्ट, आयोडीन, बनाना, सीमेंट, बुक्स, क्लोथ्स, एंड डेड एंड डिकेइंग मैटर, आयोडीन। सो कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में डिजोल्व होती हैं? कॉमन सॉल्ट और फिर आयोडीन। You have to take both the options। Okay, now another is worksheet number 2। Okay, that will also I will take photograph of this worksheet number 2 and I will provide these answers to you in the form of PDF। Okay, now see page number 104। as this lesson is very big, so we have to finish it very fast। so impurities and its removal। there are 2 types of impurities, soluble and insoluble। impurities and its removal मतलब पानी में जो impurities होती हैं, वो impurities हम किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम नष्ट कर सकते हैं, तो ये हमको इसमें देखना है। there are 2 types of impurities, that is soluble and insoluble। मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2 तरह की impurities होती है। एक तो होती है soluble जो पानी में डिजोल्व होती है, और insoluble मतलब जो पानी में डिजोल्व नहीं होती है। The impurities that dissolve in water are known as the soluble impurities, and the impurities that do not dissolve in water are known as the insoluble impurities। What is the example of soluble impurities? Salt and sugar। Okay, they can easily dissolve in water। And insoluble impurities, chalk, water, sand, chalk in water and sand in water। chalk और sand ये जो है ये insoluble impurities हैं। both these impurities are present in water and thus the removal of this impurity becomes important। now see the another activity to identify the nature of impurity present in water। take 2 flasks filled with water। मतलब 2 कांच के बाउल तुमको लेने हैं, या तो हम उसको फ्लास्क बोल सकते हैं। add a spoon of sugar in the first flask and a spoon of pencil sharpening in the second। मतलब फर्स्ट जो कांच का बाउल है उसमें तुमको क्या करना है, तो शुगर ऐड करनी है पानी में, और दूसरे पानी में तुमको क्या, पेंसिल के शार्पनिंग्स जो है, पेंसिल का जो कचरा है वो उसमें डालना है। नाउ स्टर बोथ द बीकर्स एंड फिल्टर इट। दोनों को डिजोल्व करने की कोशिश करनी है और फिर बाद में दोनों भी फ्लास्क तुमको देखना है। तो व्हाट विल यू विल ऑब्जर्व, जो पहला वाला फ्लास्क जो है उसमें शुगर इजीली डिजोल्व हो जाती है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है, लेकिन जो सेकेंड नंबर का, बी नंबर का जो फ्लास्क है, तो उसमें जो पेंसिल के शार्पनिंग जो कचरा हमने डाला है वो डिजोल्व नहीं होता। ओके, some methods of removing insoluble impurities। now students, this we are going to see in next period। okay।